Hi everyone, and welcome back to the official channel of Legal Edge. Now, before we start with our session, just do give me a tech check. Just let me know in the chat box whether I'm audible or not. Audible and visible too, guys. Chalo. So let's start with the third weekly roundup from the month of April. And यहाँ पर जो primarily हमारे पास topics हैं discuss करने के लिए that includes issues related to Article 19(1)(a). Let's discuss this over here. So primarily the issues which we'll be covering in today's session include certain aspects of Article 19(1)(a), that is in relation to the concept of slap suits and the issue of media trial. Okay. Couple of important issues took place in the month of April with respect to the institution of slap suits, or the validity of slap suits and Article 19(1)(a) of the press. And the other issue was related to the reporting of FIR, which came under the topic or the head of media trial. This second topic है हमारा. And the third topic is primarily related to menstrual leave policy, wherein one of the high courts of the country actually ordered the government कि उन्हें अपनी menstrual leave policy को implement कर देना चाहिए. बिल जब असेंबली में पास होगा तब होता रहेगा. ठीक है. सो इन दोनों टॉपिक्स के साथ डिस्कस करना हम स्टार्ट करते हैं. एंड द फर्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू चैलेंज टू द संदेश सरा गैग ऑर्डर. अब इस टॉपिक को समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक. ठीक है. देखो, one of the basic fundamental freedom which is given to every citizen of this country is given under Article 19(1)(a) of the Constitution, which talks about freedom of speech and expression. That every citizen of the country shall have freedom of speech and expression. यहाँ पर Constituent Assembly ने हमें primarily वो liberty provide करी, which was mentioned in the preamble of the Constitution of India as well. The preamble clearly stated in one of its objectives that the Constitution wants to secure to all its citizens liberty of thought, expression, belief, faith and worship. तो जो thought और expression वाली liberty थी, that is something which is ensured by Article 19(1)(a) of the Constitution of India, जहाँ पर हर citizen को हमने बोलने की आजादी दी. फिर रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस से हमें ये चीज भी क्लियर हुई दैट भले ही प्रेस या मीडिया एज सच दे विल नॉट फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ सिटीजन, है ना. क्योंकि देखो, जब सिटीजन टर्म यूज किया गया आर्टिकल 19(1) में, आर्टिकल 19(1) सेज दैट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री शैल हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. जब सिटीजन टर्म यूज किया गया तो हमें वहां से समझ में आता है कि यहाँ पर एक बायोलॉजिकल पर्सन की बात हो रही होगी. तो प्रेस या मीडिया हाउसेस बायोलॉजिकल पर्सन की कैटेगरी में तो फॉल करेंगे नहीं. बट रोमेश थापर जैसे केसेस में अर्ली 1950s में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज क्लियर कर दी दैट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गिवन अंडर आर्टिकल 19(1)(a) will also protect the right of the freedom of speech and expression of press and media as well. ठीक है. बट कोई भी फंडामेंटल राइट, ठीक है, none of the fundamental rights which are given to us or which are given to us by the Constitution of India are absolute in nature, है ना. वहां पर स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है, and the reasonable restrictions of Article 19(1)(a) are mentioned under Article 19 Clause 2 of the Constitution of India, जहां पर वो बहुत सारे लिस्ट ऑफ आपके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के ग्राउंड मेंशन्ड हैं with respect to your freedom of speech and expression. And one of the reasonable restriction which is mentioned over there is defamation. Okay, that you have your freedom of speech and expression, but you cannot exercise in such a manner that you start defaming the other person. So defamation is mentioned as a ground of reasonable restriction over there. And now what is defamation? So defamation primarily refers to publication of any such material which harms the reputation of the person in the eyes of the society. ऐसे किसी भी मटेरियल को पब्लिश करना, ऐसे किसी भी स्टेटमेंट को कम्युनिकेट करना टू अदर पार्टी, ठीक है, which will harm the reputation of the person in the eyes of the society, उसको हम डेफेमेशन कहते हैं. अब यहां पर क्या इश्यू इन्वॉल्व था आपका संदेशारा के गैग ऑर्डर से रिलेटेड. एक कंपनी थी विद द नेम ऑफ स्टर्लिंग ग्रुप. ठीक है.
स्टर्लिंग ग्रुप पे मिड 2010 के अराउंड, बिटवीन 2015 एंड 20, स्टर्लिंग ग्रुप के ऊपर एलिगेशंस लगे ऑफ कमिटिंग फ्रॉड ऑफ समवेयर अराउंड मोर देन 19,000 करोड़ रुपीस। ठीक है, वहां पर उनके ऊपर फ्रॉड कमिट करने के, इस अमाउंट के फ्रॉड कमिट करने के एलिगेशंस उनके ऊपर लगे। एंड जब केस चलता रहा या इन्वेस्टिगेशन चलता रहा, सो द प्रमोटर ऑफ द कंपनी और द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वर ट्राइंग टू एब्सकॉन्ड एज वेल। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मल्टीपल न्यूज चैनल्स ने या न्यूज पब्लिकेशन हाउस ने, द न्यूज पब्लिकेशन हाउसेस ने रिपोर्ट्स पब्लिश करी। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो रोमिला थापर के यहाँ पर नाम लिया गया। ठीक है, उन्होंने मल्टीपल न्यूज पब्लिश करी। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि न्यूज पब्लिकेशन के टाइम पे द प्रमोटर्स और द डायरेक्टर्स ऑफ द ग्रुप वर कंसिडर्ड और डिक्लेयर्ड एज फ्यूजिटिव्स एंड फ्रॉड इन दोस न्यूज आर्टिकल्स। बट क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे चल रहा था, केस वाज ऑलरेडी ऑन गोइंग, तो वहां पर उस चीज को लेकर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी आज सच, क्योंकि द पर्सन वाज एक्चुअली रनिंग अवे। ठीक है, अब सब्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि इस ग्रुप के जो डायरेक्टर्स थे, प्रमोटर्स थे, दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट और एक सेटलमेंट रीच आउट किया गया दैट दे विल पे समवॉट अराउंड 5,000 प्लस करोड़ रुपीस। ठीक है, as a form of penalty or compensation or a settlement amount with respect to the case which was going on against them. अब जब ये चीज फाइनलाइज हो गई कि 5,000 प्लस करोड़ रुपए देने के बाद उस चीज को सेटल आउट किया जा सकता है, वहां पर आपका जो केस है उस केस से रिलेटेड इतना अमाउंट देकर आप वहां पर उन चीजों को सॉर्ट आउट करवा सकते हो। तो फिर बाद में ग्रुप ने स्लैप सूट्स फाइल किए टू गेट injunction to get injunctions and gag order against John Doe publishers. जॉन डो बेसिकली एक टर्म यूज किया जाता है व्हेनेवर यू आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ एन एक्शन अगेंस्ट एन अननोन पर्सन। ठीक है, जब अननोन पर्सन के अगेंस्ट आप कोई एक्शन लेने की कोशिश करते हो उसको जॉन डो पर्सन कहा जाता है। तो यहाँ पर संदेशरा या स्टर्लिंग ग्रुप ने इंजंक्शन और गैग ऑर्डर कोर्ट से इशू करवाए। ठीक है, अगेंस्ट जॉन डो। व्हाई? बिकॉज दे स्टेटेड दैट वंस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गेव दिस काइंड ऑफ अ जजमेंट या ऑर्डर कि इतना सेटलमेंट अमाउंट वहां पर देकर आपके केस को मैनेज किया जा सकता है, तो फिर ये सारा का सारा पब्लिकेशन ऑफ द मटेरियल विच मेंशन्ड देम एज फ्यूजिटिव्स और फ्रॉड अमाउंटेड टू डेफेमेशन। एंड इस ग्राउंड पे उन्होंने गैग ऑर्डर्स ऑब्टेन किए। बट इन गैग ऑर्डर्स को बाद में सब्सिक्वेंटली जिन पब्लिशर्स के ऊपर एक्शन लिया जा रहा था बिकॉज ऑफ दो स्लैप सूट्स या इंजंक्शन, स्लैप का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक लिटिगेशन अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन, and this is primarily utilized by those big economic houses against media trial or media reporting of the instances of their companies or institution. प्राइमरली इसी चीज के लिए स्लैप सूट्स को यूटिलाइज किया जाता है। तो जब यहाँ पर पब्लिशर्स के कंटेंट को टेक डाउन करना शुरू करा, ठीक है, मेटा, गूगल, इन सब लोगों ने, तब फिर उन्होंने इस गैग ऑर्डर को चैलेंज किया ऑन मल्टीपल ग्राउंड्स एंड दिस वाज द एंटायर स्टोरी व्हिच वाज रिलेटेड ओवर हियर। सो द primary issues which are involved over here included Article 19(1)(a) and 19(2) of the Constitution, which included slap suits and gag orders against John Does. So let's see what happened over there. तो मैकेनिक स्लैप सूट का काम किस तरीके से करता है? ठीक है, the mechanics of the slap suits primarily work on the principle these are strategic lawsuit against public participation and these are increasingly utilized by entities wielding immense economic powers to bypass procedural fairness. And in Sandesh Sara case, securing a takedown order against unknown persons effectively choked reporting without allowing publishers to defend their journalism. जब आप जॉन डो के अगेंस्ट, अननोन पर्सन के अगेंस्ट जब आप एक गैग ऑर्डर लेकर आ जाते हो, भाई सिंपल सी चीज है, मैंने अगर कोई कंटेंट पब्लिश किया है एंड यू हैव अ प्रॉब्लम दैट विद दैट कंटेंट, यू विल फाइल अ केस अगेंस्ट मी, द कोर्ट विल इशू नोटिसेस टू मी, आई विल ट्राई टू डिफेंड माई पब्लिकेशन ओवर देयर कि मैंने क्यों पब्लिश किया। बट जब आप अननोन पर्सन के अगेंस्ट ये गैग ऑर्डर लेकर आ जाओ,
जहां पर द प्लेंटिफ सिक्योर्स एन ऑर्डर कंपेलिंग गूगल एंड मेटा टू डी इंडेक्स एंड टेक डाउन स्पेसिफिक यूआरएल्स विद इन 36 आवर्स। यहां पर अगर मैं उस ऑर्डर से अफेक्ट हो रहा हूं तो मेरा तो कोई सेल लिया ही नहीं गया, तो प्रोसीजरल फेयरनेस इसमें इंश्योर नहीं हो पाती है। एंड दिस इज व्हाई स्लैप सूट्स आर यूटिलाइज्ड बाय मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस टू प्रोटेक्ट देयर रेपुटेशन इन द मार्केट। अब जॉन डो का लूपहोल यहाँ पे किस तरीके से प्लेंटिफ्स ने यूज किया? सो प्लेंटिफ्स फाइल्स अ डेफेमेशन सूट अगेंस्ट जॉन डो unknown persons following a 2025 Supreme Court settlement of rupees 19,000 crore बैंक फ्रॉड केस, जहां पर बैंक कोर्ट ने कहा था कि 5,000 करोड़ रुपए करीब की पेनल्टी पे कर कर आपका वो केस सेटल आउट हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया था। तो उसके बाद द प्लेंटिफ अप्रोच द लोअर कोर्ट एंड द लोअर कोर्ट ग्रांट्स एन एक्स पार्टे एड इंटरिम इंजंक्शन अगेंस्ट दीज अननोन पार्टीज। इंजंक्शन का मतलब स्टे ऑर्डर। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने सेटलमेंट दे दिया है, उस बेसिस पे प्लेंटिफ ने लोअर कोर्ट्स को अप्रोच करा कि जब वहां पर 5,000 करोड़ के बाद पर अब केस को सेटल आउट किया जा चुका है, तो वो सारे के सारे आर्टिकल्स या न्यूज पब्लिकेशंस जो मेरे अगेंस्ट ऑनलाइन पोर्टल्स पे डले हुए हैं या ऑनलाइन वेबसाइट्स पे डले हुए हैं या गूगल पे डले हुए हैं, विच आर मेंशनिंग मी एज अ फ्यूजिटिव और अदर काइंड ऑफ थिंग्स, वो डेफेमेटरी और उन सबको हटाना चाहिए। बट इसके लिए उन्होंने स्पेसिफिक पब्लिकेशंस के अगेंस्ट केस फाइल नहीं किया इंजंक्शन का, उन्होंने जॉन डो लूपहोल को वहां पर यूटिलाइज किया। And this loophole basically leads to the requirement to serve legal notices to actual identify publishers is successfully bypassed, enforcing immediate prior restraint। ठीक है, अब जो इस गैग ऑर्डर को चैलेंज किया गया है, दैट इज प्राइमरली कंसर्निंग और रिलेटेड टू द राइट टू बी फॉरगॉटन ऑफ अ पर्सन एंड राइट टू और द पब्लिक रिकॉर्ड फंक्शन। ठीक है, द गैग ऑर्डर हाइलाइट्स अ क्रिटिकल टेंशन बिटवीन राइट टू रेपुटेशन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ जर्नलिस्टिक रिकॉर्ड्स। ये भी बात सही है कि इंटरनेट पे जो चीज डली होती है वो एक तरीके से परपेचुइटी के लिए वहां पर है, जब तक इंटरनेट एग्जिस्ट कर रहा है तब तक वो चीज रहेगी। अब पहले अगर किसी पर्सन ने कुछ गलत किया था और उससे रिलेटेड उसका आर्टिकल अगर पब्लिश हो रखा है और इंटरनेट पे है, सब्सिक्वेंटली इट इज गोइंग टू स्टे देयर फॉरएवर। But then every individual, for the purposes of their right to privacy, they have a right to forgot or right to be forgotten as well. Yes or no? भाई डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जैसे लॉज आने के बाद हमारी कंट्री में राइट टू बी फॉरगॉटन भी दिया जाता है लोगों को। अब यहाँ पर लोअर कोर्ट ने केस को, मतलब लोअर कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर या वो गैग ऑर्डर इशू करा फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट टू बी फॉरगॉटन ऑफ द इंडिविजुअल। बट जिन्होंने अपील फाइल करी अगेंस्ट द ऑर्डर, उनका कहना है या उनका प्राइमरी स्टांस है विद रिस्पेक्ट टू द पब्लिक रिकॉर्ड फंक्शन। ठीक है, सो द लोअर कोर्ट स्टैंड्स राइट टू बी फॉरगॉटन फोकसेस ऑन एंड्योरिंग हार्म एंड परपेचुअल डिजिटल अवेलेबिलिटी। ऑन द अदर हैंड, appellant stance talks about the public record function which focuses on the permanence of public history। जहां पर तीन प्राइमरी ग्राउंड्स को लेकर डिस्कशन हो रहा था। सबसे पहला था अबाउट द एक्सोनरेशन डिबेट। प्लेंटिफ्स का उस केस में कहना यह था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस 19,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस को सेटलमेंट कर दिया है, तो फिर अब हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है, वी आर फ्री फ्रॉम द गिल्ट। बट एपेलेंट का यहां पर कहना क्या है? सो द लोअर कोर्ट रूल्ड दैट अ सुप्रीम कोर्ट सेटलमेंट ड्रॉपिंग प्रोसीडिंग्स रेंडर्ड प्रीवियस फ्यूजिटिव लेबल्स डेफेमेटरी। लोअर कोर्ट ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप आउट कर दिया है, तब फिर वो प्रीवियस फ्यूजिटिव जो लेबल आपके ऊपर लगे हुए थे मल्टीपल आर्टिकल्स में, वो अब डेफेमेटरी हो जाते हैं। बट द अपील आर्ग्यूज दैट द सेटलमेंट अलाउड द रिकवरी ऑफ 5,100 करोड़ but contained no admission of non-liability, making past reporting factually accurate। appellant का कहना यह है कि भाई सेटलमेंट सुप्रीम कोर्ट ने करा दिया, बट सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे जजमेंट में कहीं ये नहीं कहा कि आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं थी। ठीक है, देयर वाज नो एडमिशन ऑफ नॉन लाइबिलिटी ऑफ द स्टर्लिंग ग्रुप ओवर देयर, एंड देयरफॉर फिर वहां पर जो हमने पब्लिश किया है दैट इज फैक्चुअली करेक्ट। सेकेंडली, द इंजंक्शन थ्रेशोल्ड। देखो, यहां पर इंजंक्शन प्री ट्रायल स्टेज पे ही दे दिया गया है। डेफेमेशन का केस चल नहीं रहा था कि फाइनल ऑर्डर या फाइनल डिक्री पास हुई हो तब इंजंक्शन दिया गया। दिस वाज गिवन एट द प्री ट्रायल स्टेज। अब प्री ट्रायल स्टेज पे इंजंक्शन का जो थ्रेशोल्ड होता है कि किस स्टेट पर आकर किस बेसिस पे आपको इंजंक्शन देना चाहिए, दैट वाज समथिंग व्हिच वाज डिस्कस्ड इन द केस ऑफ ब्लूमबर्ग वर्सेस जी एंटरटेनमेंट। ठीक है, so the appeal cites Bloomberg versus Z Entertainment precedent which cautions judges against pre-trial injunction unless the content is proven malicious or palpably false।
कि जब तक वो जो कंटेंट है वो मेलिशियस ना दिखे या पैल्पेबली फॉल्स ना दिखे, तब तक प्री ट्रायल इंजंक्शन ग्रांट नहीं करना चाहिए. दैट वाज द रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द ब्लूमबर्ग वर्सेस जी एंटरटेनमेंट केस. तो उनका कहना ये भाई कोई मेलिशियस इंटेंट के साथ हमने आर्टिकल नहीं पब्लिश किया था और पैल्पेबली फॉल्स भी नहीं है, फैक्चुअली करेक्ट है. इसलिए ये इंजंक्शन या गैग ऑर्डर अगेंस्ट दी जॉन डो पर्सन जो हमें अफेक्ट कर रहा है इज नॉट करेक्ट. थर्ड ग्राउंड जिसको लेकर आर्गुमेंट हुआ दैट वाज अबाउट द स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन. ठीक है, एपेलेंट्स का कहना यहां पर ये है कि जो आर्टिकल्स जिनके ऊपर आपने गैग ऑर्डर पास किया है दे वर पब्लिश्ड बिटवीन 2019 and 2020, and therefore the appeal contends that the public records serve a continuing public function and cannot be obliterated upon individual request years later. कि जब लिमिटेशन का पीरियड पास ऑन हो चुका है जो 3 या 4 साल के करीब होता है इन सारी सिचुएशन में, तो फिर लिमिटेशन का पीरियड खत्म होने के बाद आप कैसे केस फाइल कर सकते हो. ठीक है, तो वो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैशेस या वायलेशन ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन वाली बात होती है, उस ग्राउंड पे भी इस पर्टिकुलर ऑर्डर को चैलेंज किया गया. तो फर्स्ट टॉपिक में से जो प्राइमरी इश्यूज हैं विच यू शुड रिमेंबर फॉर द पर्पसेस ऑफ योर एग्जामिनेशंस इंक्लूड योर आर्टिकल 19(1) एंड 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फंडामेंटल राइट्स है, सीएलके में हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है. नेक्स्ट इज अबाउट द प्री ट्रायल इंजंक्शन और द स्लैप सूट, एंड द थर्ड इज अबाउट व्हाट आर दीज जॉन डो पर्सन्स. ठीक है, चलिए let's move to the next topic, and the next topic is related to the Karnataka High Court enforcing the menstrual leave policy. ठीक है, slowly and steadily gender related topics पर हमारे state which will include your executive, legislature and the judicial organ of the government also, they've started recognizing कि भाई women की कुछ specific अलग requirements हैं as per their biological anatomy. ठीक है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टाइम पहले मेंस्ट्रुअल हाइजीन को एक आर्टिकल 21 के अंडर का पार्ट माना. ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली मल्टीपल स्टेट्स में फिर लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस होना शुरू हुए ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर मेंस्ट्रुअल लीव को प्रॉपरली विमेन को प्रोवाइड करने के. ऐसा ही कुछ कर्नाटका में भी चल रहा था. कर्नाटका में इनिशियली क्या हुआ कि वहां की गवर्नमेंट ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके कर्नाटका में वहां की गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास करके ये चीज प्रोवाइड कर दी विच इज अलाउड अंडर आर्टिकल 162 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, वहां पर गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास करके विमेन को 12 मेंस्ट्रुअल लीव्स इन अ ईयर प्रोवाइड की. एंड सब्सिक्वेंटली इसी चीज के ऊपर कर्नाटका की असेंबली में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया फॉर इंप्लीमेंटिंग मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी, बट द बिल वाज स्टिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेचर में वो बिल अभी भी पेंडिंग था. तो अब कर्नाटका हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर इशू करा है कि आपका बिल जब पास होगा तब पास होता रहेगा, बट आपको वो मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी चाहिए. बट इशू इतना छोटा भी नहीं है. देखो, द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 प्राइमरी फीचर और टाइप्स, है ना. वन इज योर ऑर्गेनाइज सेक्टर, द अदर वन इज योर अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो गवर्नमेंट ऑर्डर्स के थ्रू या इन सारी चीजों के थ्रू, आप बिल्स के थ्रू फिर भी मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी को इंप्लीमेंट तो कर सकते हो. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो विमेन के सेफगार्ड्स के लिए एज सच कोई रूल्स या पॉलिसीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है ना. जैसे डोमेस्टिक हेल्प हो गई या बाकी के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई काम कर रही है विमेन, लेबरर की तरह अगर काम कर रहे हैं, वहां पर मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी का कोई हिसाब ही नहीं है ना. अनस्किल्ड लेबरर्स वाली सिचुएशन में तो मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी का कोई हिसाब ही नहीं होता. नोबडी इज हैविंग एन इन्फॉर्मेशन or even awareness about the fact that they are entitled to get such things or they should be given such a leave, right? क्योंकि देखो, इक्वालिटी का मतलब आप दोनों जेंडर्स को बराबर से ट्रीट करते रहो. फॉर्मल इक्वालिटी आपकी एक्चुअली इनइक्वालिटी को ही परपेचुएट कर रही होती है ना. सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्चुअली रेफर्स टू सब्सटैंशियल इक्वालिटी. सब्सटैंशियल इक्वालिटी का मतलब ये होता है इट्स अ काइंड ऑफ थिंग व्हिच इज रिलेटेड टू द कांसेप्ट ऑफ इक्विटी ओनली, कि आपको सबको एब्सोल्युटली बराबर ट्रीट करने की जरूरत नहीं है ना. यू आर नॉट सपोज्ड टू ट्रीट एवरीवन एब्सोल्युटली इक्वली. यू शुड रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस व्हिच आर प्रेजेंट ओवर देयर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोस थिंग्स यू कैन एक्चुअली प्रोवाइड सर्टेन काइंड ऑफ प्रिविलेजेस टू द अदर पर्सन एज वेल. एंड यहां पर फिर जेंडर के बेसिस पे जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, है ना, आपको वो अकोमोडेट करने होंगे अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज या वेलफेयर पॉलिसीज या लेबर पॉलिसीज के अंडर, ताकि आप दोनों जेंडर्स के बीच में सब्सटैंटिव इक्वालिटी लेकर आ पाओ.
And that is what the discussion took place in the state of Karnataka as well. So the Karnataka High Court mandated the strict implementation of a state policy providing 1 day of paid menstrual leave per month, capped at 12 days a year for the organized sector. Now, the ruling anchors itself in Article 15, Clause 3, which talks about special provisions for the women, and Article 42, which is part of DPSP, which is about providing just and humane conditions of work. Article 15, Clause 3 says that, or Article 15 says that, the state shall not discriminate among the citizens on the basis of religion, race, caste, sex, or place of birth. बट उसी आर्टिकल 15 को आप सब्सटैंटिव इक्वालिटी कैसे इंश्योर करते हो, वही आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में एक एक्सेप्शन मेंशन्ड है दैट विमेन के लिए आप स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हो, है ना. तो अब यहां पर जब वो चीज की रिक्वायरमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल नीड्स ऑफ द वुमेन, ठीक है, तो फिर उन बायोलॉजिकल रियलिटीज को अकोमोडेट करते हुए, क्योंकि आर्टिकल 42 में ही स्टेट की डीपीएसपी भी है दैट दे आर सपोज टू प्रोवाइड जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क टू द वुमेन, ठीक है. इन्हीं सब चीजों के बेसिस पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने के ऑर्डर दिए अबाउट द मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी. बट इसमें अभी भी दिक्कत है, क्योंकि आपने ऑर्गेनाइज सेक्टर को तो कवर कर लिया एंड कर्नाटका हाई कोर्ट के वर्डिक्ट ने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में उस पॉलिसी को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने की बात की. सो द ऑर्गेनाइज सेक्टर इज एक्चुअली कवर्ड बाय द एग्जिस्टिंग state executive policy under Article 162 of the Constitution, but unorganized sectors like domestic workers, daily wage laborers are structurally excluded as well. जबकि अब हमारे पास इस तरीके के verdicts आना शुरू हो चुके हैं, wherein the High Court also drawed on the January 2026 Supreme Court ruling. The High Court recognized access to menstrual hygiene as a fundamental right under Article 21 of the Constitution. And the court in this case issued a vital warning that the absence of adequate measures converts a biological reality into structural exclusion, and the state must tap into the unorganized workers to extend these benefits, combating a pervasive stigma that deems menstruating individuals impure as well. But as of now reality यही है कि बहुत सारे states में चलो actions start तो हुए हैं, है ना, पॉजिटिव एक्शंस टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग और अकोमोडेटिंग दीज काइंड ऑफ स्पेशल नीड्स ऑफ द वुमेन, इनके ऊपर काम होना तो शुरू हुआ है. बट अभी भी हमारा ध्यान प्राइमरली ऑर्गेनाइज सेक्टर के ही ऊपर है, ठीक है. पेड मेंस्ट्रुअल लीव इवन इन ऑर्गेनाइज सेक्टर भी बहुत सारी जगह पर नहीं अवेलेबल होती है, एंड पेड मेंस्ट्रुअल लीव्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर. बट परहैप्स इट इज द नीड ऑफ द टाइम कि भाई स्टेट्स को इन सारी चीजों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, wherein right to menstrual hygiene has been recognized as a part of Article 21 of the Constitution of India. Okay, but this was the second topic. Okay, and now the third topic which we have is from the Sikkim High Court, which upholds the reporting of an FIR. So इस टॉपिक में एग्जैक्टली हुआ क्या, तो देखो अगेन वही चीज आर्टिकल 19(1) से रिलेटेड है, ठीक है. बट व्हाट इज एन FIR? When we talk about FIR का फुल फॉर्म होता है भाई सिंपल सा, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एंड दिस रिपोर्ट is actually, or this report actually brings the criminal justice machinery in motion. ठीक है. This FIR or the first information report actually brings the criminal justice machinery in information, which is FIR actually reports commission of an offense. Commission of an offense. एंड इस FIR को, इस डॉक्यूमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है दिस इज अ काइंड ऑफ अ पब्लिक रिकॉर्ड एंड इट इज काइंड ऑफ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट. और FIR अगर पब्लिक रिकॉर्ड या पब्लिक डॉक्यूमेंट का पार्ट है, विच मीन्स every person will have a right to access these documents,
है ना। पब्लिक डॉक्यूमेंट तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, पब्लिक रिकॉर्ड तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। अब पॉइंट यहाँ पे ये था कि सिक्किम में एक ऑफेंस कमिट हुआ, पर्सन के अगेंस्ट, मतलब पर्सन ने एक ऑफेंस कमिट किया, ठीक है। वहां पर सेक्सुअल असॉल्ट, इंटिमिडेशन एंड इस तरीके के ऑफेंस एलिज किए गए उस एफआईआर में, ठीक है। फिर सिक्किम का ही जो एक लोकल रीजनल न्यूज़पेपर था, दैट न्यूज़पेपर रिपोर्टेड द कंटेंट्स ऑफ एफआईआर इन द न्यूज, ठीक है। दैट that publication house or that newspaper reported the contents of FIR in the article. अब वहां पर they specifically mentioned, it mentioned the name of the accused as well, कि भाई जब FIR के जो भी कंटेंट्स थे, जो भी डिटेल्स थी, वो सब उन्होंने पब्लिश करी और उसमें उन्होंने नेम ऑफ द अक्यूज को भी मेंशन करा। अब जब नेम ऑफ द अक्यूज को मेंशन करा, देन द अक्यूज्ड अप्रोच द सिक्किम हाई कोर्ट, ठीक है। The accused approached the Sikkim High Court claiming that publication of the name and the contents of the FIR amounts to media trial and wanted to take down or wanted to get the order or requested the court to issue the order for removal of these content from the news articles, क्योंकि उसमें accused का नाम भी mention था। So it was again primarily the issue of gag order versus media trial, wherein the exercise of Article 19(1)(a) of the Constitution of India of press or media was involved. बट प्राइमरली कोर्ट ने कहा कि भाई मीडिया ट्रायल होता क्या है। अगर कहीं पर ऑफेंस कमिट हो रहा है, कहीं पर एफआईआर फाइल हुई है, उस एफआईआर को कोई न्यूज पब्लिकेशन हाउस अगर पब्लिश कर देता है, तो इज दैट अ मीडिया ट्रायल? व्हाट डू यू थिंक? कि अगर मान लो किसी पर्सन ने कोई क्राइम कमिट किया, उस क्राइम की एफआईआर हुई, ठीक है। एफआईआर में वहां पर उस पर्सन का नाम भी लिखा हुआ था, अक्यूज्ड का, अभियुक्त का वहां पर नाम भी लिखा था, अक्यूज का नाम वहां पर पब्लिश कर दिया गया। इज दैट मीडिया ट्रायल? द कोर्ट सेड नो। mere publication of the factum of the commission of the offense will not amount to media trial as such. मीडिया ट्रायल तब स्टार्ट होता है जब मीडिया हाउसेस सिर्फ और सिर्फ फैक्टम ऑफ ऑफेंस को डिस्कस करने की बजाय गिल्ट ऑफ द अक्यूज प्रोवाइड करना या प्रोनाउंस करना शुरू करते, है ना। क्राइम, भाई फलानी जगह पे क्राइम कमिट हुआ, इस पर्सन ने कमिट किया, दैट इज द इंफॉर्मेशन व्हिच वाज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द पब्लिक डोमेन, बिकॉज एफआईआर इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये मैं अगर रिपोर्ट कर रहा हूं तो दिस इज नॉट मीडिया ट्रायल। बट अब मैं कहना शुरू कर दूं कि हाँ, ये आदमी आदतन अपराधी है, इसने ये क्राइम कमिट किया है और इसको इसकी बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। Now I am trying to pronounce a verdict about the guilt of the person even before the trial is concluded. That is what a media trial is. तो इस केस में सिक्किम हाईकोर्ट ने ये चीज क्लियर की that mere reporting of the record will not amount to media trial, and these exercise of the reporting of the record will be protected by Article 19(1)(a. जब आप मीडिया ट्रायल कंडक्ट करना शुरू कर दो, wherein the media houses start taking assertion of the guilt of the person, start making assertion of the guilt of the person, that is something which is not protected by Article 19(1)(a. सिर्फ तब आपका वहां पर एक गैग ऑर्डर इशू हो सकता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द केस ऑफ defining the limits of a media trial. Since the Sikkim High Court declined to restrain media coverage that named an accused based on police record, the court established a clear threshold. A media trial is not defined by the sensitivity of the subject matter, but by the character of the coverage. आपका मैटर सेंसिटिव है, आपका केस सेंसिटिव है, उस बेसिस पे आप उस मीडिया रिपोर्टिंग को मीडिया ट्रायल नहीं कह सकते हो। इट इज नॉट द सेंसिटिविटी ऑफ योर केस विच विल डिसाइड द कैरेक्टर ऑफ द कवरेज, ठीक है, और द कैरेक्टर ऑफ द मीडिया ट्रायल। मीडिया ट्रायल उस तरीके की चीजों को कहा जाएगा जहां पर आपके कवरेज का कैरेक्टर असर्शन ऑफ गिल्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो सिंपली रिपोर्टिंग द कंटेंट्स ऑफ द एफआईआर, a legally recognized public document open to inspection,
does not inherently violate privacy or constitute a media trial. The line is crossed only when reporting strays from the record into an assertion of the guilt. So कोर्ट ने यहाँ पर क्लियर किया भाई FIR पब्लिक डॉक्यूमेंट है which is recognized as such under section 74 of the evidence law as well. अब protected क्या है? So reporting of the record. So publishing the factum of registration and contents of the FIR is mere recording of or reporting of the record, and ये चीज आपकी protected होगी. बट जहां पर assertion of guilt आ जाए, that is rendering a verdict before the court does, that amounts to media trial. एंड वहां पर फिर आप रिस्ट्रेंट करवा सकते हो, आप इंजंक्शन या टेक डाउन ऑर्डर ऑब्टेन कर सकते हो. ठीक है. सो द रूलिंग एक्चुअली सिट्स एट द इंटरसेक्शन बिटवीन आर्टिकल 19(1)(a) दैट इज द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू फेयर ट्रायल एंड प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल. भाई अगर कोई एक पर्सन अक्यूज्ड है तो उसकी भी तो प्राइवेसी है ना. ऐसा थोड़ी था कि अगर कोई पर्सन अक्यूज्ड है तो उसको हम आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देते, वो तो उसके पास भी अवेलेबल है. तो ये जो रूलिंग है, दिस इज एक्चुअली सिटिंग एट दिस इंटरसेक्शन ऑफ आर्टिकल 19(1)(a) एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर प्राइमरली जो केस डिस्कस किए गए दैट वाज द केस ऑफ आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड सहारा इंडिया रियल एस्टेट ग्रुप वर्सेस सेबी. So relying on R. Rajgopal versus State of Tamil Nadu, the court noted that once information forms a part of a public record, the right to privacy no longer subsists. एक बार एक इंफॉर्मेशन पब्लिक रिकॉर्ड का पार्ट बन गई, उसके बाद अब वहां पर उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अपना राइट टू प्रिवेसी क्लेम नहीं कर सकते हो. बट सारा एक्सेप्शन भी एग्जिस्ट करता है that the postponement orders are permitted only where there is a risk to a fair trial is real and demonstrable. आप रिस्ट्रेन फिर भी करवा सकते हो, आप रिस्ट्रिक्शन ले सकते हो, बट किस सिचुएशन में? जहां पर देयर इज अ रियल रिस्क ऑफ फेयर ट्रायल which is also protected under Article 21 of the Constitution. And with respect to fixing the responsibility, the court made it clear that if the investigative material beyond the FIR is leaked to the press, the remedy lies in addressing the official police conduct and not in placing prior restraint on the publication. जब वहां पर अक्यूज ने कहना ये शुरू किया कि भाई इन्होंने पुलिस रिकॉर्ड को ऑब्टेन किया है, तो अब कोर्ट का इसमें कहना ये है कि अगर इन्वेस्टिगेटिव मटेरियल बियॉन्ड FIR इज लीक, कि सिर्फ FIR रिलेटेड डॉक्यूमेंट वहां पर नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, उससे ज्यादा भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है मीडिया को, ठीक है, या न्यूज चैनल्स को, तो उसके लिए कोर्ट ने कहा कि रेमेडी है कि पुलिस कंडक्ट के ऊपर आप एक्शन लो, उसको एड्रेस करो, द ऑफिशियल पुलिस कंडक्ट. रेस्ट्रेंट ऑर्डर लेकर आ जाना अगेंस्ट द मीडिया हाउसेस इज नॉट अ प्रॉपर सोल्यूशन इन दिस सिचुएशन. ठीक है. So not every reporting of a case will be considered as a matter of violation of the privacy of the individual and will amount to right or will amount to media trial. Media trial तब आएगा जब रिपोर्टिंग से आगे बढ़कर the character of the coverage goes into the assertion of the guilt of the person even before the case is decided by the court. And media trials are not protected by Article 19(1)(a), factum of the registration of the FIR and the content thereto, if only that is the character of the coverage. तो वो चीज आर्टिकल 19(1)(a) के थ्रू प्रोटेक्टेड होगी, क्योंकि जब एक इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन या पब्लिक रिकॉर्ड का पार्ट बन चुकी है, पब्लिक डॉक्यूमेंट का पार्ट बन चुकी है, देन देयर इज नो राइट टू प्राइवेसी व्हिच इज एग्जिस्टिंग इन दैट सिचुएशन. ठीक है. सो दीज वर द थ्री इंपॉर्टेंट फ्रॉम द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल: संडेसरा गैग ऑर्डर, कर्नाटका मेंस्ट्रुअल लीव एंड सिक्किम FIR रिपोर्टिंग. अदर देन दैट, आर्टिकल 131 of the 131st Constitution Amendment Bill was important, delimitation was important, that has been discussed in a separate session by Saurabh sir and me as well. तो उन सेशंस को आप वहां पर रेफर कर सकते हो. ठीक है. बाकी आज के सेशन के लिए इतना ही. रेस्ट, तबीयत वगैरह का ध्यान रखिए, आराम से पढ़ाई करिए. आई होप टॉपिक समझ में आ गए होंगे. इसके अलावा कोई भी डाउट, कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई भी नीड होती है तो यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. आई विल सी यू सून. राइट. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच भाई. थैंक यू.